सा ना मोटिवेटेड बैच लगना चाहिए, इंटरेक्टिव बैच लगना चाहिए, डल बैच नहीं चाहिए भाई, हमें माहौल पूरा चाहिए। तो लीनियर इनइक्वालिटीज पढ़ा रहे थे। अब बिल्कुल बिल्कुल भी किसी का फर्स्ट लेक्चर है तो भी समझ में आना चाहिए, ऐसा हमें स्ट्रेटेजी रखनी है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस फ्यू थिंग्स, देन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। a greater than b if it is given, then if I add a quantity to both the sides, does that change the sign? No. No, Sir. no, sir. Greater than remains greater than only, correct na bachcho? Yes, sir. Yes, sir. Means if I add 4, then also inequality sign doesn't change. If I subtract 6, then also inequality sign doesn't change, correct or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So if I have something like this, x minus 4 is greater than 2, and I have to find the value of x, that means I can add plus 4 on both the sides without affecting the sign, correct? Yes, sir. Yes, sir. So the left hand side will become x and the right hand side will become 2 plus 4, and you will get your answer. But अब मैं इस स्टेप को ऐसा नहीं कराना चाहता हूं कि तुम प्लस 4 ऐड कर रहे हो। यस, यू कैन इमेजिन लाइक दैट कि तुमने माइनस 4 को राइट साइड में लेंगे, कम ऑन डायरेक्टली लिख सकते हैं ना सर? Yes, Yes, sir. तो ये मैंने लेक्चर 1 की रिकॉर्डिंग में बोला भी है कि शिफ्टिंग अ टर्म टू द अदर साइड इज सेम एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। साउंड्स गुड? Yes, sir. Yes, sir. If I multiply something to both the sides, does the sign change, not change, or it depends? Sir, it depends. Depends, sir. Sir, it depends. It depends. So if k is positive, then sign Same. Does not change. Means the same. Means same. if k is less than 0, then Sign reverses. Reverses. bilkul changes. So if I have some example like that, ki minus x minus 4 is greater than 5. I want to find the values of x. So I can shift minus 4 to the right side now. Yes, sir. Yes, So sir. minus Yes, sir. x will be greater than 5 plus 4. Then if I Yes, want to sir. find out now about x, I should multiply by. Minus Minus 1. 1. Minus one. So this will become x, and this was 9, so this will become minus Minus 9. 9. And greater than will become Smaller than. less 10. than. तो इसको हम बच्चों मैथमेटिकल नोटेशन में ऐसा नहीं छोड़ते हैं। We want to leave the answer in set notation, which you might have seen in the MPS 1 की आंसर की में देखा होगा ना, इन्फिनिटी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अगर मैं बोलूं नंबर लाइन, देखना बच्चों ये नंबर लाइन, 0 यहाँ पे कहीं होता है, -9 यहाँ पे कहीं होगा, -9 के लेफ्ट में -10 है, एंड सो ऑन। एक्सट्रीम लेफ्ट में कैन यू इमेजिन माइनस इंफिनिटी है, which is not a fixed number, but can I say the extreme end में वही है। Yes, sir. Yes, sir. और एक्सट्रीम राइट में कौन है? Infinity. Positive Infinity. So if I am going to write the answer is x is less than -9, मतलब देखना मैं ये लाइन बना रहा हूँ, you will agree, yes, ये वाला पार्ट आंसर है। देखो Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x देखो क्या बनाया मैंने, -9 के ऊपर ओपन लिखा है, क्यों? क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। एग्री करो जल्दी से। Yes, Yes, sir. Yes, sir. इक्वलिटी नहीं है इसलिए मैंने ओपन बनाया। अगर लेस देन इक्वल टू होता तो मैं क्लोज बनाता। बिल्कुल लॉजिकल थिंग है। कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो सिंस इट इज लेस देन -9, देखो -9 पे ओपन बनाया और -9 के लेफ्ट वाले पार्ट को मैंने लाइन से ड्रॉ कर दिया एक तरीके से मानो। सो कभी भी सेट नोटेशन में लिखते हैं कि फाइनल आंसर इज लेट्स से 4 से 10, तो पहले हम मिनिमम वैल्यू लिखते हैं और फिर क्या लिखते हैं? मैक्सिमम वैल्यू। Maximum. मतलब you always go from negative to positive. Is that clear? Yes, Yes, sir. तो तुम्हारा आंसर जो भी है, अब देखो नंबर लाइन में दिख रहा है, तुम्हारा आंसर का एक्सट्रीम लेफ्ट कौन है? Negative Infinity. नेगेटिव इन्फिनिटी। तो कैन आई से ऐसा लिख दूं, x belongs to ये एप्सिलॉन, क्या नाम है सिंबल का? Epsilon. It is a Greek symbol which represents कि belongs to, x belongs to this bracket, this interval, कि x इस इंटरवल के बीच में कुछ होगा। So if I want to write down like this, x belongs to minus infinity से कहाँ तक आएगा? Minus 9. वेरी लॉजिकल ना, कि माइनस इंफिनिटी से -9 के बीच में x कुछ भी हो सकता है। कम ऑन। Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो और थोड़ा समझते हैं, चलो इधर एक एग्जांपल को फिर सारे ब्रैकेट समझेंगे। सो इफ आई राइट लाइक दिस कि x belongs to 2 to 6, तो मेरे साथ आंसर करना, यस नो, बस यही चाहिए। कैन x be 1.2?
No. No, sir. No. be 1.9? No. No. Oh. Can x be 2.01? Yes, Yes. sir. Can x be 2.5? Yes. Yes, sir. Can x be 3? Yes, sir. Can x be 3.87? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Be 4.9? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Can x be 5.00000001? Yes, sir. Can x be 5.999999? Yes, Yes, sir. sir. So these are all the x values. यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, sir. अब ये 2 पे मैंने ये ब्रैकेट्स जो यूज किए हैं इसको बोलते हैं हम ओपन ब्रैकेट्स. क्या बोलते हैं? Open bracket. Open bracket. ब्रैकेट्स या फिर राउंड ब्रैकेट्स, है ना? So there is a difference when you write like this or write like this, 2 to 6 closed. वापस बोल रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं? ओपन ब्रैकेट्स. इसको क्या बोलते हैं? Close bracket. Close Closed bracket. brackets. दोनों इंटरवल. तो इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो मैं लिख रहा हूँ. X can take any value between 2 and 6 excluding, come on, 2 and 6. 2 and 6. 2 and 6 को एक्सक्लूड करना है. 2 and 6 के बीच की सारी वैल्यूज ले लेगा. एंड द सेकंड वन क्लोज्ड, तुम्हें फील आई गई होगी यार. X can take any value between 2 and 6. What about 2 and 6? Including. एक मिनट, जस्ट पॉप अप आ गया. ये गलत टाइम पे आ जाता है नालायक. इंक्लूडिंग 2 इंक्लूडिंग 6. साउंड्स गुड बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो अब वापस पूछ रहा हूँ. चलो, x बिलोंग्स टू अगर मैंने क्लोज 3 to 10 लिखा है, मेरे साथ आंसर करते रहना. कैन x be 2? No, sir. No, sir. Sir. कोई कार्टून यस कैसे बोला? x 2 कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना नालायक को. नहीं सर. तो सोच समझ के बोल. यूं नहीं कि फीलिंग पहले बाहर आ रही है सोच बाद में रहा है ना. तो x can be 0.5. No, sir. No, sir. Sir. Can x be 2.999? No, sir. Sir. Be 3? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Can x be 3.01? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 4? Yes, Sir. Be 4.9? Yes, sir. Sir. Be 8.8? Yes, Yes, sir. Be 9? Yes, Yes, sir. Be 9.999? Yes, sir. Be 10? Yes, Yes, sir. Sir. Can x be 10 के बाद की कोई वैल्यू हो सकती है? No, sir. Sir. आई होप बेसिक तो समझ में आ गया. Yes, sir. Yes, sir. तो एक ओपन ब्रैकेट्स होता है, एक क्लोज ब्रैकेट्स होता है. दोनों कैन आई से आर इंटरवल. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जस्ट अ माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन देम इज कि बाउंड्री पॉइंट्स है इंक्लूड या नहीं है. एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. तो इन्फिनिटी को ओपन में क्यों लिखा या वो क्या लिखा था वो अभी बात करेंगे. बट पहले इन ब्रैकेट्स के बारे में तो कंफर्टेबल हो जाए. ठीक है ना? सो अबाउट ब्रैकेट्स मेरे साथ बस इंटरेक्ट करना है. अभी लिखना नहीं है. जब लिखना होगा मैं आपको बता दूंगा बच्चों. यू शुड फोकस ऑन इंटरेक्टिंग विद मी लाइक द अदर स्टूडेंट्स वर डूइंग. सो 4 टाइप के ब्रैकेट्स पढ़ने हैं हमें. द फर्स्ट वन इज ओपन ब्रैकेट्स. द सेकंड इज क्लोज ब्रैकेट्स. थर्ड वन इज जस्ट a bracket to fool you, mixed bracket, and the last is curly brackets or isolated brackets बोल सकते हैं. तो मैं लिख रहा हूँ, तुम मुझे समझाओगे आप. Example: x belongs to 2 to 6. x belongs to 2 to 6 closed. x belongs to 2 open 6 closed. x belongs to curly bracket 2 and 6. आई एम श्योर बहुत बच्चों को बिल्कुल क्लियर अभी से ही हो गया होगा. एग्रीड? Yes, sir. इनके बारे में एक कमेंट लिख देता हूं, फिर तुम मुझे समझा दोगे. वैसे तो दिस मींस x कैन टेक, बोलो, एनी वैल्यू Between 2 and 6, excluding 2 and 6. 2 and 6. व्हाट अबाउट 2 and 6? Excluding. 2 and 6 बोथ. करेक्ट ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे लिख सकता हूँ x कैन टेक Any value between 2 and 6. Including 2 and 6. Including 2 and 6. 2 and 6.
बिल्कुल करेक्ट, इंक्लूडिंग 2 and 6 बोथ करेक्ट ना बच्चों? Yes. sir. अच्छा, मिक्स ब्रैकेट में तो मैं अपनी मर्जी के हिसाब से लिख सकता हूँ, मतलब जैसा आएगा वो हम हैंडल कर लेंगे, करेक्ट ना? ऐसा Yes, भी आ sir. सकता है। Sir. तो यहाँ पे क्या है, x can take, yes, Any interval है। value. कंटिन्यू Any कंटिन्यू value बच्चों। 2 Any and value 6 between including 6. Value Two and between 2 and 6, Including 6. excluding 2, Including 2 6. including 6. तो ये पहले 3 ब्रैकेट्स आर ऑल इंटरवल, ये तीनों इंटरवल है, ये लास्ट वाला इंटरवल ही नहीं है, ये तो कॉमन सेट नोटेशन में यूज करते हो तुम। Yes, sir. Excluded, sir. तो मैं बोलूंगा तो मैं अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, देखना। आइसोलेटेड वैल्यूज, आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? सिर्फ 2 और 6 सिर्फ एलोन वैल्यूज, एलोन वैल्यूज, कोई इंटरवल नहीं है। दिस इज नॉट एन इंटरवल, Set. बिल्कुल सेट नोटेशन है, दिस इज जस्ट अ सेट। तो इसका मतलब क्या होगा? कैन x बी जस्ट इंक्लूडिंग 2 एंड इंक्लूडिंग में क्या लिखूंगा? x कैन बी 2 और 6, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो ये लास्ट वाले में मुझे आंसर करो, कैन x बी 2.1? No, sir. No, No, sir. sir. कैन x बी 4? No, Sir. कैन x बी 2? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, Can yes, X be yes, 6? yes. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. अच्छा, कोई बच्चे मुझसे कभी का डाउट पूछते हैं, सर कर्ली ब्रैकेट्स में मतलब हमेशा ऐसे 2 ही आ सकते हैं क्या? नहीं, ज्यादा भी आ सकते हैं, 2 3 6 लिख सकता हूँ ना ऐसा? Yes, sir. Yes, sir. तीन कितने भी लिखो, सारे बस वैल्यूज हो सकती है। इसका मतलब x कैन बी 2, x कैन बी 3, x कैन बी 6, उसके अलावा हर में नो आएगा। एग्रीड यहाँ था? Yes, sir. यस सर Yes. तो कैन आई से कर्ली ब्रैकेट में तो कोई डाउट नहीं है, No, sir. ये तीनों ब्रैकेट भी क्लियर हैं। बट अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तुम आंसर करो। क्या मैं कभी ऐसा लिखूंगा, इज दिस एक्सेप्टेबल, x बिलोंग्स टू 6 to 2, ऐसा? No, sir. No, sir. No, sir. नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, हमेशा छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू पे जाएंगे। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Sir. अच्छा, ऐसा चलेगा क्या, x बिलोंग्स टू कबाड़ा पता नहीं क्या कुछ भी 6 to -2 ऐसा कुछ? No, sir. No, sir. No, sir. वो सेम रीजन, छोटे से बड़े पे जाना है, पॉजिटिव से नेगेटिव पे नहीं, नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाना है। अच्छा, ये चलेगा, x बिलोंग्स टू 2, 4, 6 ओपन ब्रैकेट? यस Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No, No, sir. sir. No, sir. बिल्कुल नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। Whatever you are thinking, हम उसके लिए अलग से एक सिंबल बनाएंगे, अलग से लिख लेंगे। अगर तुम लिखना चाहते हो कि x 2 से 4 भी हो सकता है, 4 से 6 भी हो सकता है, फिर तो यही लिख दो ना, 2 to 6, कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर तुम बोलना चाहते हो कि x 2 से 4 भी हो सकता है, 4 से 6 भी हो सकता है, फिर 4 पे ब्रैकेट को ब्रेक करने की जरूरत क्या है? 2 to 6 ही लिख दो। एग्री करो बच्चों? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तुम में से एक इंटेलिजेंट बच्चा बोल रहा है, सर नहीं 2 to 6 तो करना है, बट 4 नहीं चाहिए, वी डोंट वांट 4, तो 4 को हटा देते हैं यूजिंग दिस। कम ऑन, मेक सेंस? एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. आर यू विद मी? आता? Yes, sir. Sir. चलो, तो थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। अभी यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में भी समझाऊंगा, बट उससे पहले बेसिक प्रैक्टिस करते हैं। लाइक इफ आई वांट टू राइट डाउन कि x इज बिटवीन 6 to 2, उसको सेट नोटेशन में, ब्रैकेट इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखूंगा बच्चों? x बिलोंग्स टू Close bracket, 2,6. Bracket 2,6. सब बच्चे एग्री करेंगे, क्लोज 2 to 6 आता है। Yes, Yes, sir. Yes, sir. अगर मुझे ऐसा लिखना हुआ कि x बिलोंग्स टू 2 to 7, 7 पे ओपन है, फिर कैसा लिखूंगा? 2 or 7. 2,7. 7 open bracket. आई होप यू आर ओके। Yes, sir. अभी ऐसा लिखना हुआ, तो हमेशा इंटीजर होना जरूरी नहीं है, 2.9 से 5.7 कोई बात नहीं, लिख दो, उसमें क्या है, x बिलोंग्स टू X belongs to 2.9. 2.9. 5.7. क्या इस जो सा लिखा है, कैन x भी 5.7? No, sir. So, ओपन ब्रैकेट है। ओके, अब थोड़ा सा सोच के बोलना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सुनना, बोलना नहीं है, जब मैं पूछूं तब बोलना। क्या इसका ये मतलब है क्या कि x हमेशा 4 से बड़ा है? No, sir. No, sir. Not Sir. always. No, sir. क्या Sir, no, sir. अरे, x हमेशा 4 से ही तो बड़ा है, 4 या 4 से बड़ा है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Also equal to. क्या 4 से बड़ा है ना? हाँ, sir. तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, बस ये बता दो।
कम ऑन, उस इसमें तो एग्री नहीं करोगे कि x बिलोंग्स टू 4 क्लोज लिखना चाहिए? कम ऑन, एग्री करो। Yes, Yes, sir. sir. किसी को इस वाले पार्ट में यहाँ तक डाउट है? No, sir. x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो x बिलोंग्स टू 4 क्लोज आता। अगर यहाँ पे ग्रेटर देन कर दूं तो क्या चेंज आएगा बताओ? Open bracket. विथ मी एवरीवन? Yes, sir. मेक इट अगेन क्लोज ब्रैकेट राइट नाउ। अच्छा, अब तुमने बोला था x की 4 मिनिमम वैल्यू है, तो अब मेरा क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू क्या है? Infinity. जल्दी से एग्री करो, इन्फिनिटी है। Yes, sir. Infinity पे तो open bracket. हाँ, जितना पूछूं बच्चे अभी इतना। आई अप्रिशिएट योर एंथुसियाज्म, बट मुझे सबको समझाना है तो सबसे आंसर निकलवाना चाहता हूँ बच्चों। तो कैन आई अप्रिशिएट कि कोई बच्चा आगे नहीं बोलेगा? Yes, sir. Okay, ना? Yes, sir. सो क्या ये सबको क्लियर है कि इन्फिनिटी तक मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है? बट हम सब ने शायद से, आई डोंट नो, डिस्कस किया कि इन्फिनिटी कोई फिक्स नंबर नहीं होता है। Yes, sir. Sir. क्या इन्फिनिटी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया कभी? Yes, sir. थोड़ा सा Yes, sir. थोड़ा सा sir. सर आपने बोला था पूरा किसी और दिन बताओ। हाँ, तो चलो ना इन्फिनिटी के बारे में अभी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर इस पे वापस आते हैं। अबाउट इन्फिनिटी जो लिखना होगा मैं तुम्हें बता दूंगा, डोंट वरी। ओके, इज इन्फिनिटी अ फिक्स नंबर? No, No, sir. There is no, it is not a fixed number. Is infinity a symbol or an expression to write very big number? Yes, sir. yes Yes. Sir. ये एक बिग नंबर को लिखने के तरीका है, बट वो बिग नंबर क्या है वो कोई फिक्स नहीं है। जस्ट Yeah. बिग से बिग नंबर, बिगेस्ट नंबर लिखना है। तो तुम बोलोगे 10 raised to power 40, मैं बोलूंगा उससे भी बड़ा नंबर ये होता है। तुम बोलोगे 10 raised to power 400, मैं बोलूंगा 10,400 ले लो। तुम बोलोगे 40,000, मैं और बड़ा करता रहूंगा। तो कैन यू इमेजिन, मैं कितना भी बड़ा नंबर करूं उसको लिख तो नहीं पाऊंगा ना? yes, Yes, उससे sir. बड़ा नंबर भी एग्जिस्ट करता है। कमॉन, उससे बड़ा नंबर भी एग्जिस्ट करता है। Yes, sir. Yes, sir. sir. सो उसको लिखने का कोई फिक्स तरीका नहीं है कि यस ये नंबर है, या फिर ऐसा बोलो वहां पहुंच जाओ वो इन्फिनिटी आ गया, ऐसा बोल सकते हो क्या? No, sir. No, sir. तो जहां भी तुम पहुंच रहे हो उससे एक स्टेप आगे और ले लेना, मैं तो ये बोलूंगा। करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. yes तो देयर इज नो फिक्स नंबर जिसको हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं। हम बस इन्फिनिटी क्या बोलते हैं? बहुत बड़ा नंबर बोलना है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, इन्फिनिटी पैसे। समझ गए इतनी बात को? इन्फिनिटी जस्ट अ सिंबल टू एक्सप्रेस वेरी बिग नंबर, इट इज नॉट अ फिक्स नंबर। तो अगर मैं पूछूं, तुम इससे ही समझ जाओगे, देखना। व्हाट इज इन्फिनिटी प्लस 1? infinity आई होप कन्विंस हो गए होगे इसी से कि बहुत बड़ा Yes, sir. नंबर प्लस 1 क्या है? बहुत बड़ा नंबर। बट क्या ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी सेम है क्या कि कैंसिल कर दोगे? No, Sir. 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 1 इक्वल टू 0। आई होप इतनी नालायकपंती नहीं करोगे। समझ गए ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो व्हाट इज इन्फिनिटी प्लस 10? Infinity. व्हाट इज इन्फिनिटी इनटू 2? Infinity. infinity व्हाट इज इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी? Infinity. Infinity. सही लिखा है क्या मैंने? 2 इन्फिनिटी नहीं sir. Only infinity होगा. इन्फिनिटी। क्या ये सबको एग्री करते हो यहाँ तक? Yes, sir. तो सुनना मेरे साथ, प्लस एंड मल्टीप्लाई बहुत इजी है सोचने के लिए। अच्छा, क्योंकि वो तो क्वांटिटी को बढ़ा रहा है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Sir. नंबर को बढ़ाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? वो तो इन्फिनिटी पे पहुंचेगा। बट अब थोड़ा सोचो, इन्फिनिटी के मुकाबले में 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Sir. इन्फिनिटी के मुकाबले में तुम 1000 भी सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी सब्ट्रैक्ट करोगे तो इट कैन बी, ये Zero. जीरो नहीं होगा, ये जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इन्फिनिटी इस इन्फिनिटी के मुकाबले में कितना बड़ा है तुम्हें क्या पता? कम ऑन, Yeah. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन, यहीं से तुम देखो, ये इसी एग्जांपल से दिख रहा है। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तो 1 हो गया। देखो डिफरेंट दिख रहा है। Yes, Yes, sir. sir. तो तुम बोलोगे हाँ सर यहाँ पे 1 है क्योंकि आपने इन्फिनिटी प्लस 1 को नया इन्फिनिटी लिखा था। तो मैं वैसे ही बोल रहा हूँ कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हम बोलेंगे इट इज नॉट डिटर्मिनेट टिल वी नो इसकी ओरिजिनलिटी क्या है, ये कहाँ से आया। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Sir.
तो डायरेक्टली अगर कोई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बोलोगे क्या बोलोगे? नॉट डिटरमिनेट। Not defined. Defined. नॉट डिफाइंड नहीं, नॉट डिफाइंड अलग चीज होती है, नॉट डिटरमिनेट अभी हम बता नहीं सकते। कैन आई से लाइक दैट? Yes. Yes, sir. Sir. Yes. नॉट डिफाइंड अलग चीज होती है। नॉट डिफाइंड मतलब क्या है? आप लिख नहीं सकते, मतलब लिखो नहीं, यू नहीं कि यू आर नॉट एबल टू राइट, दैट इज नॉट पॉसिबल। दैट इज लाइक डिनोमिनेटर में जीरो कभी आ ही नहीं सकता। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes. Sir. जीरो इज नॉट डिफाइंड, वाइल इन्फिनिटी कुछ और होता है, वो अभी मैं समझा ही रहा हूं तुम्हें। बट इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कभी आया तो क्या बोलेंगे हम? नॉट डिटरमिनेट। Not determined. नॉट determinate. डिटरमिनेट। तो सेम लॉजिक से बताना मुझे, कम ऑन, थोड़ा सोच के बोलना। इन्फिनिटी बाय 2 तो इन्फिनिटी होगा, एग्री करो। Yes, Yes. sir. Sir. बाय 10 भी इन्फिनिटी होगा, कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Sir. थोड़ा सोच के बोलना। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी क्या हमेशा 1 होगा क्या? No, Nine. No, sir. Fine. No, sir. Not determined. नॉट determined. Determined. नॉट डिटरमिनेट टिल यू नो कि ऊपर वाला इन्फिनिटी नीचे वाले इन्फिनिटी के मुकाबले में कितना बड़ा है। कम ऑन, कन्विंस हो जाओ। Yes. 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 Sir. इसलिए उसको क्या बोलते हैं? नॉट डिटरमिनेट, कि हम नहीं बता सकते जब तक आप पूरा नहीं बताओगे। बिल्कुल ओके। Yes. Yes, sir. Sir. Yes, sir. तो इसी के ऊपर हमारे पास कैलकुलस में पूरा चैप्टर है जिसको बोलते हैं क्या? लिमिट्स। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे बच्चों की? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के क्वेश्चन हैंडल कैसे करना है। जैसे यूं ही आज मस्ती के लिए बताता हूँ, देखना इधर, सब मेरे साथ देखोगे। हाँ, sir. Yes, sir. हाँ, sir. ऐसे ही तुम्हें क्यूरियोसिटी को क्लियर करने के लिए देखो, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसका क्या मतलब है? x इन्फिनिटी पे अप्रोच कर रहा है। चलो ये भी छोड़ो, x x टेंडिंग टू 2, x 2 पे अप्रोच कर रहा है और मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। क्या क्वेश्चन क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है जब x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2, x इज नॉट 2। क्या देयर इज अ डिफरेंस? x इज 2 and x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 2। Yes, Yes, sir. Yes. sir. बिल्कुल है, x टेंड्स टुवर्ड 2 मतलब 2 के पास है, लाइक 1.99 है या फिर 2.01 है, बट 2 नहीं है। आर यू विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. तो बस इसमें ज्यादा नहीं, मैं तुम्हें बस सरप्राइज देना चाहता हूँ कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी कुछ हो जाता है। लाइक देखो इधर, या और इजी एग्जांपल लेते हैं इससे पहले। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x बाय x, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x बाय x स्क्वायर, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x स्क्वायर बाय x। तीनों में एग्री करो कि जब अगर x को इन्फिनिटी रखोगे तो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। कम ऑन, Yes, Yes, sir. sir. Yes, Sir. sir. ये वाला भी एग्री करो, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। Yes, Yes. sir. Sir. और ये भी एग्री करो कि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. बट अब तुम सब ने तीनों का आंसर भी सोच लिया होगा। जैसे पहले का आंसर x कैंसिल हो गया, 1 है। कम ऑन, क्योंकि दोनों जगह सेम वैल्यू है, x और x। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब दोनों इन्फिनिटी एक दूसरे के मुकाबले में बराबर है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. Sir. बट सेकंड क्वेश्चन से तुम सब एग्री करोगे कि नीचे वाला इन्फिनिटी बड़ा है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, One by sir. के मुकाबले में मतलब क्या बोलूं, स्क्वायर है। करेक्ट और नॉट? हाँ. Yes. Square है, yes. तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले x को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास आ गया लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ 1 बाय x। आर यू विथ मी यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. अब ऊपर 1 है और नीचे इन्फिनिटी है, तो बताओ आंसर किसकी तरफ टेंड करेगा? Zero. Zero. Zero के तरफ. कम ऑन, 1 को अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो 0 की तरफ ही मूव करेगा ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो हमारा आंसर यहाँ पे 0 की तरफ टेंड करेगा। यस, 0 की तरफ टेंड करेगा, मान लिया। बट पहला वाला तो 1 पे टेंड किया था। कम ऑन, एग्री करो। Yes, Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो तुम्हें दिख रहा है कि सेम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के डिफरेंट आंसर हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन। yes, sir. Yes. Yes. Yes, sir. लीव इट हियर। वन एग्जैक्ट हुआ ना कि टेंड हुआ? वन एग्जैक्ट नहीं, एग्जैक्ट या टेंडिंग टुवर्ड, तेरे को अभी वो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ठीक है? तो Yes, यहाँ पे sir. आंसर 1 पे टेंड कर रहा है, यहाँ पे आंसर 0 पे टेंड कर रहा है। बिल्कुल ओके। तो बस मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि सेम इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के डिफरेंट आंसर आ सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन व्हिच विल अंडरस्टैंड इन द एंटायर चैप्टर ऑफ लिमिट्स। एम आई क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा फील दिलाने के लिए कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तुम्हें समझना है कि अच्छा वो तो डिपेंड करता है भाई क्या होगा। तो और एक दो चीजें और,
डिफरेंस बिटवीन 1/0 एंड इंफिनिटी। 1/0 तो सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको अपन? Not defined. बट अब इंफिनिटी क्या होता है मैं समझा देता हूँ। देखो इधर 1/0.1 कितना होता है? 10. 10. Sir, 10. 1/0.01 100. मैं क्या कर रहा हूँ? 1000. 1000. क्या कर रहा हूँ मैं? कम ऑन बोलो, एक्सप्रेस करो, क्या Dividing बोल कर by रहा हूँ a मैं? very small number. मैं डिनोमिनेटर की वैल्यू को 0 की तरफ मूव कर रहा हूँ। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. डिनोमिनेटर की वैल्यू को 0 की तरफ मूव कर रहा हूँ तो तुम्हारा राइट साइड का आंसर बढ़ते जा रहा है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. मतलब नंबर लाइन में यहाँ 0 है तो पहले मैंने 0.1 से मूव किया था, फिर मैंने 0.01 पे पहुंचा, सॉरी, और फिर मैं और क्लोजर टुवर्ड 0 जा रहा हूँ ना डिनोमिनेटर के लिए। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. जितना Yes, मैं sir. जाता जाऊंगा यहाँ की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. सो सबसे मैक्सिमम कब बढ़ जाएगी? जब मैं बोलूंगा मैं 0 के बिल्कुल नजदीक हूँ। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. Sir. that number will be somewhat like 0.00000000 uncountable times 0 and 1. Yes, sir. That is what infinity is. Come on, since infinity is not a fixed number, Yes, इसका sir. denominator भी fixed number नहीं है। Come on, agree करो। Yes, Yes, sir. 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 क्या ये काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? क्या ये Uncountable. Uncountable. काउंटेबल? तो अगर ये अनकाउंटेबल है तो ये फिक्स नंबर है या ये जस्ट अ सिंबल है? Symbol. सिंबल है, तो इसको अब से हम 0 प्लस डिनोट करेंगे। If I ask you 0 plus, what you will tell me? Where does 0 plus lies on the number line? Closest to Just 0. to the right of. Closer to the- Come on, agree करो। Just to the right of 0. Yes. Yes, sir. So who is 0 plus? 0 plus is a symbol to represent a very, very small positive number. Can I say? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Very, very small positive number. और उसका रेसिप्रोकल लेते हो तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाता है? बताओ। कम ऑन, Infinity. Infinity. तो कम ऑन, डिफरेंस दिख गया। 1/0 तो क्या होता है? Not different. Not defined. बट इन्फिनिटी क्या होता है? 1/0 प्लस। 0 plus. वापस रिपीट कर रहा हूँ, इज इन्फिनिटी अ फिक्स नंबर और जस्ट अ सिंबल? Symbol. Symbol. Is 0 plus a fixed number or just a symbol? Symbol. Just a symbol. अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ माइनस इन्फिनिटी किसके बराबर हो जाएगा भाई? -0 plus. That's 1/0 0 plus. minus. Where does 0 minus lies? Just to the left of 0. Oh. To the left of 0. क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर है आपको चीजें? Yes, sir. Sir. तो एक बार इन्फिनिटी के बारे में लिख दें, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। वो वापस ब्रैकेट्स पे आते हैं ना, चलेगा? Yes, sir. तो एक बार इन्फिनिटी के बारे में लिख दो, फिर कोई डाउट हो तो आप पूछना। पहले लिखो अबाउट इन्फिनिटी। ये ट्रू और फॉल्स की तरह कुछ गधों बच्चों को लगेगा इन्फिनिटी इज अ फिक्स नंबर। तुम ऐसे लिखो इन्फिनिटी इज नॉट अ फिक्स नंबर। समझ गए ना? Yes, sir. हम तो ट्रू और फॉल्स कर रहे थे, बट कोई गधा पता नहीं लिख देगा इन्फिनिटी इज अ फिक्स नंबर। इसलिए बेटर है लिखो इन्फिनिटी इज नॉट अ फिक्स नंबर। सर बट इन्फिनिटी इंटू 2 को 2 इन्फिनिटी लिख सकते हैं ना? अभी कोई डाउट नहीं, कॉपी कर। नहीं लिख सकते, ये अभी समझाया बच्चे। बहुत बड़ा नंबर इंटू 2 क्या होता है? बहुत बड़ा नंबर। ओके, तो बस बहुत बड़ा नंबर लिखेंगे। 2 इन्फिनिटी लिखने का कोई लॉजिक नहीं होता। 2 इंटू इन्फिनिटी मतलब बहुत बड़ा नंबर इंटू 2 क्या होगा? बहुत बड़ा नंबर, वो लिखो। 2 infinity is not acceptable, not a good term. Yes, that is not wrong, but that is not good to write.
कॉपी करो, कॉपी करने के बाद मैं डाउट अप्रिशिएट करता हूँ, तब तक अपने कोई भी डाउट के बारे में सोचना चाहिए ताकि बीच में कोई दूसरा बच्चा डिस्टर्ब भी नहीं हो। ये लिमिट वाला पार्ट मत लिखना, वो तो तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए लिखा था। इज दैट क्लियर? Yes. Sir. कैन आई से यहाँ तक कॉपी हो गया? कैन आई स्क्रॉल डाउन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये भी थोड़ा बहुत समझा दो। 0 प्लस 0 माइनस 1/0 प्लस इंफिनिटी होता है। अब लेफ्ट साइड में मैंने ये जो वैल्यूज लिखी है 0.1 0.01, ये लिखने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, तो इन्होंने समझाने के लिए। यस, इंफिनिटी वाले पार्ट में कोई डाउट? सर यस मीत। सर हम ऐसा बोल सकते हैं कि 1/0 टेंड्स टू बी इंफिनिटी बट नॉट इक्वल्स टू इंफिनिटी। नो नो, नहीं बोल सकते। 1/0 को क्या बोलते हैं बच्चे? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड। एग्जैक्ट जीरो डिनोमिनेटर में एक्सेप्टेबल नहीं है, समझ गया? बट इंफिनिटी क्या होता है? 1/0। तो क्या 1/0.0001 क्या ये इंफिनिटी हो गया क्या? नो सर। नो। Can I turn next page? Everyone done till here? Yes, sir. Sir, 1 minute. Yes, बच्चे। sir. सर 1/0 माइनस को हम -1/0 प्लस लिख सकते हैं। -1/0 माइनस कौन है बच्चे? देखो समझ में आना चाहिए। 0 माइनस is 0.00000 uncountable times 0 and 1 with a negative sign. तो come on, माइनस बार आ गया। अब 0.00001, what is this figure जो मैंने सर्कल किया है? बता जल्दी से। 1/0 प्लस ना? हाँ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर। बस मैं क्या पूछ रहा हूँ वो बोल। 1/0 प्लस कितना हुआ? 1/0 प्लस इंफिनिटी। इंफिनिटी। तो इंफिनिटी के आगे क्या लगा है? माइनस। गॉट इट? Yes, Yes. sir. आई थिंक अब तो सबका हो गया होगा बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो बताओ इंफिनिटी के बारे में हम क्यों पढ़ रहे थे? याद आ गया? एग्जाम्पल याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. तो अब तो बिल्कुल क्लियर है। चलो फास्ट। x की मिनिमम वैल्यू 4, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी। बट Yes, sir. कम ऑन, सबको एग्री करोगे इंफिनिटी इज नॉट अ फिक्स नंबर जिस पे क्लोज ब्रैकेट रखे हैं। कम ऑन, एग्री करो। Yes, Yes, बिल्कुल गलत sir. है, Yes, sir. क्योंकि क्लोज ब्रैकेट का तो मतलब है x इंफिनिटी हो सकता है। अरे इंफिनिटी कोई फिक्स नंबर ही नहीं है तो उसको असाइन कैसे कर सकते हो? कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. Yes, Yes, sir. इंफिनिटी इज नॉट अ फिक्स नंबर कि तुम वो x को असाइन कर दो। इंफिनिटी तो जस्ट सिंबल है लिखने का कि हाँ बहुत बड़ी वैल्यू तक जा रहा है। तो Sir. x कैन नेवर बी एग्जैक्ट इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी कुछ एग्जैक्ट है ही नहीं। बताओ, कन्विंस हो यहाँ पर? Yes. Sir. Yes, sir. क्या लिख रहा हूँ देखना, एग्री करो। इंफिनिटी इज ऑलवेज इन व्हाट, विच ब्रैकेट्स? ब्रैकेट्स। ओपन ब्रैकेट्स, इररिस्पेक्टिव कि क्वेश्चन में ग्रेटर देन इक्वल टू है या ग्रेटर देन है। क्या यहाँ तक सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो इसका आंसर क्या होगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का आंसर क्या है फिर फाइनल? x बिलोंग्स टू Closed for Closed for all. infinity open. Bracket infinity. इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी कभी भी क्लोज ब्रैकेट में नहीं लिखोगे, लिखोगे तो गलत है।
कॉपी करो ये एग्जांपल्स यहाँ तक, फिर डाउट कुछ हो तो पूछना, तब तक सोचो. कॉपी दिस अबाउट ब्रैकेट्स. अपने डाउट के बारे में सोचो, कहीं नहीं जा रहा है डाउट, फिर हम क्लियर करते हैं बच्चों. लास्ट वाले में बच्चों ये अच्छी तरह लिखना, इट इज नॉट एन इंटरवल. सर आई हैव अ डाउट. तो अपने पास रखो. क्या बच्चे, क्या नाम था तेरा? पलाश. पलाश, तू सुनता नहीं है मैंने क्या बोला डाउट के बारे में? क्या बोला मैं 4 बार तो कम से कम बोल दिया. क्या बोला पलाश? क्या बोला? रिपीट कर. ये लिखने के बाद डाउट पूछने का. तो फिर तू बीच में क्यों पूछ रहा है? और ये मत बोलना सर मैंने लिख दिया. क्या मेरा मतलब वो है क्या तू लिख दे और फिर डाउट पूछ ले, ऐसा? नो सर. पलाश, थोड़ा सा पेशेंस रख, बच्चों की तरह तो ना बताना पड़ेगा बार बार. मैं बोलूंगा जब डाउट पूछो तब पूछो, क्योंकि ऑनलाइन में डिस्टरबेंस होता है बच्चों, समझो इस बात को. Can I scroll down little bit? Yes, sir. यस सर. यस सर. नो यहाँ तक सर, थोड़ा सा. जल्दी से करो बच्चे. सर 2 मिनट बस. सर वो लास्ट वाला ब्रैकेट को कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं ना? यस बच्चे. हाँ लिखा ना करो, हेडिंग देखो क्या लिखा, कर्ली ब्रैकेट्स. हाँ सर. हाँ सर, कवर हो गया सर. अच्छा, इसका एक और नाम भी लिख दो यार, ओपन ब्रैकेट के अलावा क्या बोलते हैं इसको? राउंड. राउंड Round. ब्रैकेट. दूसरे वाले को एक और नाम क्या बोलते हैं? एनी गेसेस? स्क्वायर ब्रैकेट. स्क्वायर ब्रैकेट. और ये कर्ली ब्रैकेट्स इज फाइन. कहना इसे अब रॉन्ग नोटेशन वाले पार्ट तक तो आ चुके हो ना? ठीक. अब जो एग्जांपल्स आपको अच्छे लग रहे हैं वो कॉपी कर लो जल्दी से. यू हैव 1 मिनट टू कॉपी एवरीथिंग. चल रही है सर एक साइड कर्ली ब्रैकेट वाला थोड़ा नहीं लिखा था बच्चे. नहीं, अब बहुत टाइम हो गया, तेरे को अभी तक कॉपी कर लेना चाहिए था. इतना भी स्लो हो गया तो क्या मतलब है यार, हैं? और वापस बोल रहा हूँ, मैं सबको टेक केयर करके करूंगा, बट कभी कोई छूट भी जाए डोंट वरी, स्क्रीनशॉट तुम्हें बाद में मिल जाएंगे. थोड़ा आगे बढ़ जाना. सर. हो गया. जस्ट अ सेकंड.
यस, जैसे किसी बच्चे को डाउट आता है सर आपने माइनस बताया है, उसकी जगह प्लस भी हो सकता है क्या? ऐसा तो हो सकता है, वो भी मैं समझाऊंगा, डोंट आस्क मी अबाउट दैट, वो भी क्वेश्चन में मैं दूंगा, देन विल डिस्कस दैट। बट जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट है तो यू कैन आस्क नाउ। सर मेरा क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू राइट x belongs to open bracket 1 comma 10 open bracket, and if you want to write but not between example 3 to 6, तो कैसे लिखेंगे? तो नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 to 6 इसके अंदर आ चुका है बच्चे। तो लिख नहीं सकते ऐसा, but excluding between 3 and 6? बिल्कुल ऐसा चलेगा, बट इससे अच्छा मैं क्या लिखूंगा, x belongs to 1 to 3 यूनियन 6 to 10, और ये यूनियन के बारे में अभी समझाऊंगा तुझे। ओके ओके ओके, तो वही मैंने बोला था, प्लस वाला पार्ट अभी समझाऊंगा। क्लियर? यस सर। एनी अदर डाउट टिल हियर? जितना बड़ा है यूं मत बोलो कि वो कैसे लिखेंगे, क्योंकि वो अभी आने वाला है। जितना पढ़ा है उसमें कोई डाउट? सर 1/infinity का वैल्यू क्या होगा सर? 1/infinity, तू ये बता कि इज दिस जो तूने लिखा है ये फिक्स वैल्यू लिखा है या खुद ही एक टेंडिंग वैल्यू है? तू ये बता बस। सर टेंडिंग वैल्यू है सर। तो बस इसलिए फिर इसका आंसर 0 लिखेंगे, बट 0 इज आल्सो अ टेंडिंग वैल्यू। ठीक है? ओके सर। सर अगर हमारे सोल्यूशन सेट में O पॉजिटिव और O नेगेटिव होंगे तो? नहीं हो सकते बच्चे, प्लीज अंडरस्टैंड, ये सिंबल है, सिंबल को नहीं लिखेंगे। इन्फिनिटी को तो लिखते हैं बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। कम ऑन, एग्री कर। यस सर। बट कभी मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या बच्चों? व्हाट डू यू थिंक? ये ऐसा कुछ ये सही है? यस सर, राउंड What is- ब्रैकेट। हाँ, व्हाट डू यू थिंक बच्चों, ये सही है गलत है? गलत। गलत है। गलत है सर। मेरा वीडियो बंद कर रहा हूँ। ये अच्छा है, रॉन्ग नोटेशन में लिख देना। इज दिस एन एक्सेप्टेबल नोटेशन टू राइट? यस, नो? नो। नो। इसकी जगह करेक्ट आंसर क्या है? x बिलोंग्स टू ओपन 0 से 2। कम ऑन, वही तो मतलब है उसका। एग्री करो। यस सर। यस सर। कम ऑन ऑल ऑफ यू अप्रिशिएट। 0 ओपन का मतलब ही तो ये है कि 0 नहीं है, बट 0 के राइट में सारी वैल्यूज है। कम ऑन। यस सर। यस सर। तो ये नहीं लिखोगे, ये एक्सेप्टेबल है। इज एवरीवन क्लियर अबाउट दिस? यस सर। तो ये लिख दो, ये अच्छा पॉइंट पूछा बच्चे ने, तो ये लिख दो इसे आप। Sir, if you want to do the same thing with like -0, like to the left of 0, how will you write it? बिल्कुल, तो वैसे ही लिखेंगे ना बच्चे। अब खुद दिमाग लगा पूछने से पहले। ये हो गया ना? देख, हो गया नहीं हो गया? हाँ यस सर, यस सर। -2 से 0 मतलब क्या हो गया बच्चों? कि 0 के लेफ्ट में सारी वैल्यूज है टिल -2, बट 0 नहीं है। करेक्ट और नॉट? यस सर। Sir, if 1/0 plus is infinity, then what is 1/0 minus? मेरे को आता ही नहीं यार, क्या करूं? मुझे नहीं आता। वैसे डफर बच्चे, गुस्सा आता है यार सच्ची में। क्या गधे तू, क्या उस समय माइक बनता तेरा? क्या था ये? क्या सामने लिखा हुआ है? क्या कर रहा था बच्चे जब ये पढ़ रहा था? मैं अब डांट खाएगा फिर। जल्दी बोल। Sorry sir. पलाश दिमाग खाएगा यार। मैं मतलब गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन एक वो जो चीज लिखाई हुई इतना बोल्ड में वो पूछेगा तो फिर थोड़ा सा डांट तो खा सकता है ना? एग्री करेगा? हाँ है ना? Yes sir. तो क्या कर रहा था तू नालायक? ये पता मेरे को उस समय जब मैं ये पढ़ा रहा था और ये लिखाया भी है, अभी नोट्स कॉपी करने को भी दिया, तो क्या कर रहा था तू उस समय? अरे बोलना फ्रैंकली यार, मैं तेरे को पता है मैं ऐसे ही Sir, बोलता वो हूँ। माइनस वाला गलती से मिस हो गया मेरे से। ऐसे मत कर यार। बट ठीक है, क्लियर है बच्चे? सर। हाँ सर। चलो अब आगे बढ़ेंगे, उसके सर, बाद सर। फिर पूछना। जल्दी बोल। सर हमेशा ये ब्रैकेट्स में हमेशा 2 वैल्यूज ही होंगे कि वी कैन राइट मोर देन 2 वैल्यू? तुम सबको यार डिक्टेशन और सुनने की बहुत अच्छी जरूरी है। मतलब क्या, मतलब गधों की तरह एक ही चीज ये बताया ना बच्चे, ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, वो चीज कवर करी जो मैंने तेरे से पूछी। और ये एक्सेप्टेबल है या नहीं है, सामने दिख रहा है तेरे को? यस सर, यस सर। फिर अच्छे, चलो राइट इन। अबाउट ब्रैकेट्स की पहले वाले पेज से कुछ नहीं लिखना है। नहीं बच्चे, जो लिखना है मैंने आपको लिखा दिया, इतना काफी। राइट इन इंटरवल नोटेशन जो मैं दे रहा हूँ। चलो
सिर्फ इंटरवल नोटेशन लिखो और कुछ नहीं चाहता हूँ मैं तुमसे। चलो जल्दी से यहाँ तक लिख दो बच्चों, सारे सही होने चाहिए। 7th वन विल बी लिटिल बिट न्यू फॉर यू, उसके अलावा तो सारे स्मूथली होने चाहिए। आई एम श्योर 4th 5th तक तो पहुंच गए होगे, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. ये बात। फोर्थ में इंफिनिटी का यूज आएगा या माइनस इंफिनिटी का? फोर्थ में माइनस इन्फिनिटी। करेक्ट। इसमें इंटरसेक्शन नहीं लेना, ये एक्स ये भी हो सकता है विथ ये भी हो सकता है, तो फाइनल आंसर लिखना है कि एक्स 4 से 9 भी चलेगा, एक्स 10 भी चलेगा, तो फिर फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे वो लिखना है विथ दिस। सर चैट पे डालना है। अब ये बहुत इजी है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे तब करेंगे, तो जो मैं पता है तो जस्ट एग्जांपल्स है नोटेशन में। अभी मत भी डाल दो चलेगा मुझे। सर तो 7th वाले में 9 to 10 के बीच में x नहीं हो सकता ना? लेकिन नहीं, हाँ यस बच्चों सबने कर लिया 6 तक तो एटलीस्ट? यस सर। Yes. मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 7th अगर नहीं भी हुआ तो मेरे साथ करोगे, ठीक है? वो थोड़ा कुछ नया है वो। चलो 6 तक आंसर डिस्कस कर रहे हैं। एक बार मैं सबके आंसर लिखता हूँ, फिर कोई डाउट हो तो बताना, ठीक है? फर्स्ट का आंसर बोलो चिल्ला के। x belongs Close bracket to to infinity, open bracket. इंफिनिटी पे ओपन रखना है, सबको ध्यान रखना है। इज दैट क्लियर? Yes. सर ओके, सेकंड का आंसर x बिलोंग्स टू open bracket 0 क्लोज ब्रैकेट 0 open bracket. करेक्ट, 0 क्लोज 2 ओपन। थर्ड का आंसर x बिलोंग्स टू Close minus Open 6 open. चुप चुप चुप। अरे क्लोज कैसे बोल रहे हो? क्लोज्ड है ओपन है? गधों। Open, sir. sorry sir Open, sir. open open. तो
तो ये कुछ बच्चे, ये बताओ पहले फीलिंग बार क्यों लाते हो, पहले सोचते क्यों नहीं हो, ये बता दे यार, है? सोच के बोलो, इंस्टेंट आंसर नहीं चाहिए मुझे, करेक्ट नहीं आएगा ना? -6 कैसे हाँ आया? यार, हाँ चुप, यस सर। मैं समझा रहा हूँ तो मैंने कुछ दिमाग कुछ और यहाँ लिख दिया, बट क्या तुम सब समझते हो कि सोच के बोलो, पहले इंस्टेंटली आंसर नहीं चाहिए? इज दैट क्लियर एवरीवन? यस सर। ओके, सोच के बोलो, 2 सेकंड लो, फिर लो, बताओ क्या लिखूं? ओपन ब्रैकेट bracket माइनस minus infinity comma 6 क्लोज close bracket. परफेक्ट, अब अच्छी तरह बोल रहे हो ना यार, मजा आ गया। फिफ्थ, ओपन ब्रैकेट माइनस ओपन ब्रैकेट Open 1 to 5 में किसी को भी डाउट है? नो sir. सर सेकंड वाले को x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रेसेस 0,1 भी लिख सकते हैं ना कर्ली ब्रैकेट 0,1, ये सर? बिल्कुल गलत है बच्चे, मैं समझाया, यहाँ तो x 0.5 भी हो सकता है, x 1.2 भी हो सकता है, x 1.3 भी हो सकता है, x 1.35 भी हो सकता है। कर्ली ब्रैकेट में ये सब वैल्यूज आती है क्या? नहीं सर, नहीं। डोंट एवर थिंक अबाउट जस्ट इंटीजर, सिर्फ इंटीजर दिमाग में मत लाया कर, सब डेसिमल वैसिमल सब आती है हमारे। क्लियर? ओके सर। तूने इसलिए करा ना क्योंकि तू इंटीजर के बारे में सोच। एक बच्चा जब डाउट पूछ रहा है, दूसरे को कूदने की परमिशन नहीं है। हाँ बच्चे, तेरे को क्लियर है कि हमेशा इंटीजर दिमाग में मत लाया कर, ठीक है? हाँ सर, क्लियर। यस बच्ची, कोई पूछ रही थी? सर तो कर्ली ब्रैकेट कब आएगा? कर्ली ब्रैकेट जब आएगा जब सब मैं सिंगल वैल्यूज लिखूं, मैं ऐसा लिख देता कि x is 1 2 3, तो बस तब कर्ली ब्रैकेट आएगा। ओके। या फिर कहाँ आएगा, 6th एग्जांपल में आएगा यूज उसका, 6th में आ सकता है, उसके बिना भी कर सकते हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं। देखो 6th का आंसर मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, तुम बताना कौन कौन सा सही है, चलेगा? Okay. ओके सर। 6 में ऑप्शन देता हूँ, बट क्या क्वेश्चन सबको क्लियर है कि x 4 से 9 भी हो सकता है, बट x से 7 नहीं होगा? इज दैट क्लियर ना? Yes sir. चलो जो मैं लिख रहा हूँ बता देना। x belongs to 4 to 9 क्लोज, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। अभी हाँ या ना मत करना, अभी सिर्फ देखो, 4 to 9 minus 7, ऑप्शन सी 4 to 7 यूनियन, यूनियन मतलब प्लस होता है, यूनियन मतलब क्या होता है बच्चों? प्लस। हम प्लस नहीं लिखते हैं, प्लस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल, हम प्लस की जगह क्या लिखते हैं एवरीवन? यूनियन। उल्टा यू, बस। तो दैट इज सेम एज प्लस फॉर यू। x belongs to 4 to 7 7 open यूनियन 7 ओपन 9 क्लोज। सोच समझ के बताना, इनमें से दो सही हैं। अब कौन से दो सही हैं? सोच समझ। बाकी सब भी सोचो, देखो कितना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं मेरे बच्चे। कम ऑन, कौन सा सही है? लाउड वॉइस, बुलंद आवाज। ऑप्शन B and D. अच्छा पहले बात बताओ, ऑप्शन ए क्यों गलत है? 7 एक्सक्लूडेड है। बस बिल्कुल सही है। बस वही, इतना लेट लतीफ मत एंटर हो तू, और मैं जैसे ही बोलूंगा तुम्हें चुप हो जाना है बच्चों। तो यस बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन ए इसलिए सही नहीं है क्योंकि x 7 नहीं हो सकता, वाइल ऑप्शन ए में तो x 7 भी हो सकता है। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes sir. ओके, ऑप्शन सी इसलिए गलत है, सेम रीजन, 7 पे क्लोज रखा गया। Close bracket. 7 इक्वल भी। हाँ 7 पे क्लोज रखा गया, क्लोज तो हो ही नहीं सकता। एग्रीड और नॉट? Yes sir. Agreed sir. अच्छा एक ऑप्शन ई डालू तो 4 to 7 7 पे ओपन यूनियन 7 क्लोज से 9। ये Sir it's wrong. बिल्कुल नहीं। और क्या ये सबको क्लियर है कि ये तो कभी लिखना ही नहीं चाहिए, मतलब दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल, ये सही है, गलत नहीं है, बट ये एक्चुअली यही चीज है। कम ऑन, एग्री करो। Yes sir. Yes sir. अब बच्चे दिमाग लगाओ कि ये चीज एक्चुअली यही है। कम ऑन। हाँ सर। Yes sir. तो ये तो हमने ऑप्शन ए में डिस्कस किया हुआ गलत है, तो ये भी गलत है। बताओ 6 क्वेश्चन में किसी को डाउट? No sir. No doubt. लिख लो, ये ऑप्शन बी और डी के बारे में सही है, लिख लो। अभी यूनियन के बारे में मैं लिखा दूंगा, डोंट वरी।
यस सर सिद्धांत फुल्ली करेक्ट आंसर बी और डी दोनों ही होगा। क्या बोल रहा है, वापस बोल। सर फुल करेक्ट आंसर बी और डी दोनों है। क्या 4 करेक्ट? 6th क्वेश्चन का आंसर बोल रहा है ना? है बच्चे? सर मैं बोल रहा हूँ बी और डी दोनों आंसर ही है ना। हाँ बच्चे। ओके और सर। क्या बोला मैंने भी, बी और डी दोनों सही है। सर आप ये डी मतलब डी आंसर क्यों होगा, बस एक्सप्लेन कर सकते हो? यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चे? लाइक यस प्लस। यस यस सर। तो क्या बता, तेरा यही तो मतलब है, x 4 से 7 कोई भी ले लो और फिर 7 से 9 कोई भी ले लो, बट 7 पे दोनों जगह ओपन है, मतलब 7 नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल सही है ना नोटेशन? हाँ ये ओके 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 सर, समझ गया। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो देखो यहाँ यूनियन के बारे में लिखना चालू करते हैं। अभी तुम नहीं लिखोगे, सिर्फ सुनोगे। यूनियन इज सेम एज एडिटिव। कैन आई से वन वर्ड में एडिटिव? Yes. यस सर। तो एडिटिव का मतलब, अगर मैं लिखना चाहता हूँ कभी x बिलोंग्स टू 4 to 7 प्लस 9, मैं प्लस नहीं लिखूंगा, उसकी जगह क्या लिखूंगा एवरीवन? 4 to 7 यूनियन कर्ली ब्रैकेट। कभी मैं लिखना चाहता हूँ देखो कि x बिलोंग्स टू 4 to 7 प्लस 9 to 12, तो उसकी जगह कैसा लिखूंगा मैं? x बिलोंग्स टू 4 to 7 यूनियन 9 to 12। ओके, अब थोड़ा दिमाग लगाना। कभी मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ तो 4 to 7 प्लस 6 to 10, दिमाग लगाना, क्या लिखूंगा मैं इसको? क्या ऐसा लिखूंगा? belongs to 4, ये गलत है। 4, 10 सर 4,10 4,10 लिखूंगा। कम ऑन एग्री करो। यस सर। कम ऑन एग्री करो ऑल ऑफ यू। यस सर। तो यूज योर कॉमन सेंस। जब वो बोल रहा है 4 to 7 सब कुछ चलेगा और फिर 6 to 10, तो एक्चुअली 4 से 10 चलेगा। एवरीवन ओके ना? यस सर। तो एडिटिव की जगह अब तुम्हें कभी कोई वर्ड और भी दिख सकता है, और इज सेम एज यूनियन बच्चों। और मतलब कहना ही से, इसका मतलब यही था, देखना सेकंड वाले का, कि x 4 to 7 भी हो सकता है और x 9 से 12 भी हो सकता है। बताओ, यही मतलब है इसका। कमान यस सर। मैं क्या लिख रहा हूँ, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, x कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 4 and 7 और बिटवीन एनी वैल्यू 9 and 12। कमान एग्री करो, बीच में और आ रहा है। यस सर। तो यस, यूनियन का मतलब एडिटिव या फिर और भी यूज कर सकता हूँ। क्या बिल्कुल क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस सर। हाँ सर। ऐसा लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 6 to 12 और x कैन बी बिलोंगिंग टू 13 to 20। कम ऑन, कॉमन सेंस है। और ही लिखेंगे ना यहाँ पे? Yes. यस सर। x 6 से 12 भी हो सकता है या फिर x 13 से 12 20 भी हो सकता है। तो फिर फाइनल आंसर किस फॉर्म में छोड़ोगे? 6 to 12 यूनियन 13 से 20। आर यू विथ मी यहाँ तक बच्चों? यस सर। वापस समझा रहा हूँ, इस लाइन का मतलब क्या है? x कैन टेक एनी वैल्यू फ्रॉम 6 to 12। ऑब्वियसली दोनों साइमल्टेनियसली तो नहीं हो सकता। एग्री करो कि x 6 से 12 के बीच में भी हो जाएगा और 13 से 20 हो सकता है क्या साइमल्टेनियसली? नहीं सर। नो सर। यूज कर रहे हैं। और x कैन टेक एनी वैल्यू बिटवीन 13 and 20। तो और का मतलब हम बीच में यूनियन लिखेंगे। बिल्कुल क्लियर? यस सर। ये अभी कॉपी करने का टाइम दूंगा, डोंट वरी ना, तो मैं अभी सिर्फ समझना है। तो अब 7th में आ जाओ मेरे साथ। देखना इधर, x बिलोंग्स टू 4 से 9 विथ x इक्वल्स टू 10। मतलब विथ मतलब कि और x इक्वल्स टू 10 ही लिखना चाहता हूँ मैं। या तो x 4 से 9 है या फिर x 10 भी चलेगा। तो लाउड वॉइस में बताओ कैसे लिखोगे। कम ऑन। x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट 4, 9 यूनियन कर्ली ब्रैकेट 10। यस, ये लिखोगे तो गलत नहीं है, बट दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल नोटेशन। 4 to 9 प्लस 10 ये गलत नहीं है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग में ओके, बट दिस इज नॉट एन एक्सेप्टेबल मैथमेटिक्स नोटेशन। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। किसी बच्चे को डाउट आ रहा है सर ऐसा लिख, किसी बच्चे को डाउट आ रहा है सर ऐसा लिख दूं फिर तो मैं डायरेक्ट? कॉमन सेंस यूज करो। ये सही है गलत है? गलत है। गलत है सर। गलत है। क्यों? क्योंकि x 9.6 अलाउड नहीं होना चाहिए, बट यहाँ तो अलाउड है। कमान,
सर इसलिए ये गलत है। क्या ऐसा लिख सकता था क्या मैं? और क्या वो सोच सकते हो तुम? नहीं बस ठीक है, हो गया है। सेवन का जेहान मैं बाहर निकाल दूंगा। अब जिसने मेरे को फालतू टाइम पे रोका, मेरे बिना पूछे डाउट पूछा, आई थ्रो हिम आउट डायरेक्टली किक आउट करूंगा, क्योंकि तुम सीख नहीं रहे। इंस्टेंटेनियसली डाउट में कभी अप्रिशिएट करता ही नहीं हूं। क्यों? क्योंकि वो विदाउट थॉट आता है और वो दूसरों को भी कंफ्यूज करता है। सुना जेहान तूने? सॉरी सर। नहीं, अब दिमाग में रखना, सारे बच्चों को लास्ट वार्निंग है। चलो 7th के बारे में कॉपी करो। और कोई भी बच्चा माइक पे बोलेगा तो पहले अपना नाम बोलेगा, देन ओनली ही विल स्पीक अप। सेवन कंप्लीट कर लो। ये 7th लिख लिया आपने? यस सर। यस सर। चलो 7th पे कोई डाउट किसी को? आंसर यही है। 7th सर पे किसी को डाउट? मेरा नाम जेहान है, मैं पूछूं? यस जेहान बोलो। So can we write x belongs to 4, 10 in close brackets minus 9, 10 in open brackets? यस चलेगा, बट नॉट प्रेफरेबल। नॉट प्रेफरेबल गलत नहीं है, थियोरेटिकल पेपर में चलेगा, बट कभी ऑप्शन इस फॉर्म में नहीं होगा। कैन आई से लाइक दैट? इसकी जगह वो क्या देंगे? 9 से 10 तो पूरा ही हटा रहा है ना, तो फिर वो 4 से 9 ही दे देंगे। कम ऑन, एग्री कर? यस सर। तो ये गलत नहीं है, बट नॉट प्रेफर्ड कभी ऑप्शन में देखो कभी नहीं दिखेगा। थियोरेटिकल पेपर में तू लिखेगा तो दे कांट डिडक्ट मार्क्स, बट नॉट एन एक्सेप्टेबल नोटेशन, हमेशा ये लिखेंगे क्योंकि इट्स वेरी इजी टू थिंक ऑफ। यस सर। नेक्स्ट सर अर्श सर माइनस की जगह इंटरसेक्शन लिखता है ना? जो लिखते हैं मैंने पढ़ाया अभी तेरे को, तू क्यों पूछ रहा है? नहीं सर, आपने यूनियन बताया ना। हाँ तो तू बस इसलिए उसके बारे में पूछेगा नहीं। माइनस को इंटरसेक्शन बिल्कुल नहीं लिखते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है अभी पढ़ाऊंगा। ओके। और कोई? सर हेलो सर। यस कविश। नंदिता तू बोल, नंदिता बोल पहले। अच्छा So actually I have a doubt that if in the same question it is given that x is equal to 10 and 13. And आ रहा है? Yes sir. How can x be 10 and 13? And का Sir मतलब होता है दोनों। x is 10 or 13. तो फिर बस फिर और आना चाहिए ना। Yes sir. So sir in the curly bracket it will be 10, 13 ना? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। Okay sir. Thank you. यस कविश। सर 6th वाले में वो जो आप इंटरसेक्शन का बोल रहे थे, जो अब तक सिखाया मैंने नहीं। बोला ही नहीं, मैंने बोला ही नहीं। इंटरसेक्शन तो मैंने यूज ही नहीं किया, खत्म बात। कहाँ है मैंने इंटरसेक्शन तो नहीं नहीं, लेकिन अगर उससे हम लोग कर सकते तो चलेगा ना? मेरे को आता ही नहीं। अच्छा, मुझे आता ही नहीं। हाँ थोड़ा समझो यार, कितनी बार बताया कि आगे की चीज नहीं, इंटरसेक्शन जब पढ़ाऊंगा तब करेंगे, तो बी पेशेंट। हाँ सर। जितना पढ़ाया उसमें डाउट पूछा करो। वो आई नो क्यूरियोसिटी आती है शुरुआत में, आई नो विद यू, बट दैट आई हैव टू बैलेंस, अदरवाइज दूसरे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो दैट आई हैव टू टेक केयर। आई होप यू अंडरस्टैंड कविश। हाँ सर। चलो बच्चे यूनियन के बारे में लिख दो जल्दी से। यूनियन मतलब एडिटिव और राइट डाउन 1 or 2 एग्जांपल लिख लेना। ये जरूर लिखना बच्चों कि इसका मतलब क्या है जो ये मैंने लिखा है। प्लीज राइट इट डाउन ना। तो यूनियन को 1 वर्ड में क्या बोलोगे? यूनियन इज सेम एज 1 वर्ड एडिटिव। एडिशन।
बिल्कुल करेक्ट. और आई कैन इवन से और ना, Additive. आई कैन इवन से और Yes. sir. कि x lies in this interval or x lies in second interval. तो अगर मैं ये लिखूं can x be 6.2, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि कॉमन सेंस बोल रहा है कि Yes, sir. x 4 to 7 भी हो सकता है और 9 से 12 भी हो सकता है. तो इन दोनों में से किसी भी इंटरवल में होगा तो चलेगा. आई होप यू एग्री. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes. Can Yes, x be sir. 7.7? No, sir. No, sir. No. क्योंकि दोनों में से किसी में भी नहीं है. Can x be 13? No, sorry. No, Can sir. x be 10.6? No. Yes, sir. Yes, sir. Yes, yes. 10.6 बिल्कुल हो सकता है. सारे एग्जाम्पल मत लिखो, जस्ट कॉपी 1 और 2. लास्ट वाला तो बिल्कुल लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऊपर कवर हो चुका है. Yes, are we done now? Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों. बाय द वे कोई छूट भी जाए तो थोड़ी सी जगह छोड़ देना यार. बट आई होप यू आर कॉपिंग जस्ट 2 एग्जांपल इन मोर देन इनफ. ओके. सो एडिटिव हो गया. एडिटिव का दूसरा नाम है यूनियन. ओके, जस्ट वी हैव जस्ट डिस्कस दैट. यूनियन का भाई कौन है? Intersection. इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन को उल्टे यू से रिप्रेजेंट करेंगे. वो वन वर्ड में कौन है? एंड. और क्या बोलेंगे? कॉमन वैल्यूज, दैट इज इंटरसेक्शन. तमाम दोनों में डिफरेंस समझते हैं बच्चों? यूनियन वर्ड वन में कौन होता था? एडिटिव. करेक्ट और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट इंटरसेक्शन वन वर्ड में कौन होता है? कॉमन वैल्यू. Common. देखना तुम खुद ही समझा दोगे मुझे. x belongs to 2 to 6. Intersection with x belongs to 3 to 7. सुनना, जितना पूछूं उतना ही जवाब दोगे. इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? वन वर्ड. Common. Common values. तो बताओ फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? यूज योर कॉमन सेंस. कम ऑन. 4, 4, 4 5, and open 6. bracket. 4 and 6. 4. नहीं. Closed. Stop. वापस गधों की नॉलेज लगाने लग गए. मैंने बोला कि वापस बोले. Open bracket. म्यूट. परमानेंट म्यूट कर दिया मैंने इतनी बार बोला, जब मैं बोल रहा हूँ बीच में मत बोलो. आई नो, आई अप्रिशिएट, बट पहले तो गलत बोले तो मैं अब करेक्ट करा रहा हूँ, तो फिर बीच में मत बोलो. जब भी मैं आंसर पूछता हूँ x को इंटीजर दिमाग में क्यों लाते हो? पहले बात ये बताओ. 4 कहाँ से आ गया? 4 तो मुझे दिख भी नहीं रहा है. Why 4? क्योंकि 3 के बाद आता है. अरे किसने बोला कि x इंटीजर भी हो सकता है? सिर्फ x इंटीजर ही हो सकता है? मुझे बस ये आंसर करना. आप जल्दी से मेरे साथ चलो. फाइनल आंसर में कॉमन वैल्यूज होनी चाहिए. फाइनल आंसर में कैन x बी 3? यस और नो? Yes. Yes, sir. Oh. No sir. No sir. No, sir. चलो 3 के, तो तुम 3 कंफ्यूज हो रहे हो तो छोड़ो. कैन x बी 2.1? Yes, sir. No sir. No, sir. No, sir. Oh no, sir. Sorry, no. बिल्कुल नहीं. 2.1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों ब्रैकेट में नहीं है. कॉमन का और क्या मतलब होगा? यूज योर कॉमन सेंस. कॉमन का मतलब क्या है? दोनों ब्रैकेट में होना चाहिए. क्या 2.1 सेकंड ब्रैकेट में है? क्या नहीं. No, sir. Yes, sir. क्या 2.1 फाइनल आंसर में होगा? Yes, sir. No sir. तो थोड़ा दिमाग लगाओ. ये बैच में सच्ची में थोड़ा दिमाग कम है यार. मतलब मजा नहीं आ रहा है मेरे को इसमें. सोच के नहीं बोलते हो, क्योंकि इंस्टेंटेनियस आंसर बोलते हो, फिर समझ में आ जाता है इंस्टेंटेनियसली, क्योंकि पहला आंसर बिना सोचे समझे बोलते हो. तो अब से रूल है, कोई भी क्वेश्चन पूछूं 3 सेकंड से पहले कोई नहीं चिल्लाएगा, और जिसने फॉल्ट किया 2 बार फॉल्ट किया फिर गाना गाएगा.
सुन लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा, चिल्लाओगे नहीं इंस्टेंटेनियसली, 3 सेकंड के बाद ही आंसर चाहिए। उससे पहले जिसने दिया अगर 2 बार गलती करी तो फिर मेरी पसंद का गाना गाओगे सबके सामने। एक्सेप्टेबल? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो हमने डिस्कस किया था 2.1 इज नॉट ओके बिकॉज 2.1 दोनों ब्रैकेट में नहीं है, वही तो मतलब है कॉमन वैल्यूज का। तो वापस पूछ रहा हूँ 2.9 3 सेकंड के बाद। No, sir. No, sir. No, sir. 3 सेकंड के बाद ही हमेशा। 2 No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. बट क्रिश की एक फॉल्ट हो चुकी है, ठीक है ना, क्योंकि क्रिश ने इंस्टेंटेनियसली आंसर चलाया। करेक्ट क्रिश, है ना? सर मैंने इस बार नहीं बोला था, मैं सर, बस सर। माइक ऑन हुआ था। सर मैंने बोला था सर। अच्छा ओके अक्षत, बट ध्यान रख नालायक, ठीक है? मुझे इंस्टेंट आंसर नहीं चाहिए क्योंकि गलती हो रही है इसलिए। चलो आप सोच समझ के। कैन x बी 3.1? सोच समझ के 3 सेकंड के बाद। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बिल्कुल सही। कोई डाउट किसी को 3.1 के बारे में? No, No, sir. No, sir. sir. कैन x बी 3.00000001? Yes. Yes, sir. कैन x बी 3? अब सोच समझ के 3 सेकंड के बाद। नहीं। No, sir. No, sir. No, sir. Why no? मैं समझा रहा हूँ क्योंकि x 3 सेकंड ब्रैकेट में है ही नहीं, 3 पे ओपन है। कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो 3 नहीं है बट 3.001 से 3.1 है, फिर 4 है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 4.1 है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 4.9 है, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है, Yes, sir. Yes, Yes, sir. 5.1 है, Yes. Yes, sir. 9 है, Yes, sir. Yes, sir. 5.999999 है। Yes, Sir. Yes, sir. सोच समझ के 2-3 सेकंड के बाद 6। नहीं। No, sir. Sir. 6 के बाद की कोई भी वैल्यू। नहीं। नहीं, No, sir. 7 No, sir. no, sir. Sir. 7 के बाद की कोई भी वैल्यू। No, sir. No, No, sir. sir. तो क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि फ्यूचर IITian से इन सबको देख के आप मुझे करेक्ट आंसर बोल सकते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. 2 Yes, सेकंड ले sir. लो, 3 सेकंड के बाद ही चिल्लाओगे। 3 सेकंड के बाद क्या आंसर? 3 सेकंड के बाद 3 से 6 राउंड ब्रैकेट। 3 to 6 ओपन ब्रैकेट इज द आंसर। कम ऑन, सोचो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Come on, appreciate the thought. Yes or no? Yes, sir. Sir. क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि अब मैं नेक्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन पूछूं उसके लिए इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. कैसे देखना है? देखो मैं समझा रहा हूँ शॉर्ट में, कैसे देखोगे? अच्छा कॉमन तो 2 to 6 और ये 3 तो ऑब्वियसली सेफ साइड में 3 आ गया, और फिर 6 और 7 में बड़ा कौन, छोटा कौन है? 6, तो 3 to 6। आर यू ओके? Yes, sir. Yes, sir. और भी तरीके हैं इसको सोचने के, बट आई वांट यू टू थिंक डायरेक्टली। चलो एक और ट्राई करते हैं। 5 सेकंड के बाद ही आंसर। 5 सेकंड से जो भी पहले बोला फिर गाना गवा दूंगा। क्लोज्ड, सॉरी यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन। 5 सेकंड के बाद ही स्क्वायर ब्रैकेट 4 to 10। चिल्लाओ एवरीवन, क्या है आंसर? Square belongs to square bracket. bracket. 10. किसी को डाउट इसमें बच्चों? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. एक और करते हैं। x belongs to -6 to 2 intersection x belongs to 0 to 10। 5 सेकंड के बाद जब मैं बोलूंगा, मैं बोल दूंगा कि अब चिल्लाओ, तब चिल्लाना। सोच लो। और 0 पे ओपन है, थोड़ा सा मैंने डिफिकल्ट बनाने की कोशिश की है, थोड़ा सा। चलो चिल्लाओ। Open bracket Open 0, bracket, comma 2 including- close bracket. Including। ओपन ब्रैकेट 0 2 क्लोज। क्या सब मेरे साथ हो? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों? Common. कॉमन। Common. मतलब यही मतलब है कि x या तो 2 से 6 के बीच में, मतलब या नहीं आएगा, सॉरी या नहीं आएगा, x 2 से 6 के बीच में एंड 3 to 7 के बीच में चाहिए, तो फिर फाइनल आंसर बिल्कुल ठीक है, लॉजिकली सेज कि x 3 to 6 होना चाहिए। करेक्ट और नॉट बच्चों? Yes.
Yes, sir. Yes, sir. चलो यहाँ तक कॉपी करो, फिर नंबर लाइन से भी समझाता हूँ मैं। कॉपी करो यहाँ तक 1 or 2 एग्जांपल्स। ये छोटी गेंद के खिलाफ, लेकिन बहुत कंफर्टेबल लगे हैं पिच पर। से डिफेंस दिखाया है फास्ट बॉलर के खिलाफ भी और स्पिनर नेथन लायन के खिलाफ। विनायक, दोनों 4-2 Vinayak has been kicked out. Vinayak has been kicked out. Okay, I hope all of you know the reason. Yes sir, मैच देख रहे हैं। मैच देख रहा है, पढ़ाई करते हुए, आराम से देखो, या फिर वो उसके साथ में रूम में कर रहा है तो भी गधा है वो। सर आपको ज्यादा जा रहा हूँ, आपने बोला था आप कहानी सुनाओगे। अच्छा हाँ, अभी सुनाता हूँ मुझे। इतना मोटिवेटेड वाला मस्त वाला लेक्चर चलो तेरे को, उसमें बीच में ये भी याद आ गई है। सर क्यूरियस है हम लोग। करते करते सर पापा ने टीवी ऑन किया था। बच्चा लिख रहा है ग्रुप में। सर विनायक ने लिखा। सर विनायक ने लिखा पापा ने टीवी ऑन कर दिया था, सॉरी। बोलना पापा ही पढ़ा देंगे, वो लिख दे। रहने दे, मत लिख। गधा, पापा ने टीवी ऑन कर दिया भाई, तो तेरे को वहां पढ़ना, मतलब ऐसे गधे बच्चे का लॉजिक भी मैं समझ नहीं पाता हूँ। छोड़। अभी आगे चलो। जो बंद कर दे बेटा, नहीं तुझे भी किक आउट कर देंगे। ए बाबा क्या करें बताओ, है बच्चों? आई होप बच्चों ये सारी वैल्यूज नहीं लिख रहे, 1-2 लिख दो बोलिए ना। कॉपी द लास्ट एग्जांपल आल्सो। And can I say and is the now the proper keyword to use? Come on, and. Yes sir. Yes sir. ये x फर्स्ट इंटरवल में भी होना चाहिए and सेकंड इंटरवल में भी होना चाहिए, एग्री करो? Yes sir. Yes sir. Yes sir. सबका कॉपी हो गया यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। अब देखो कितना हम कितना लॉजिकली समझ रहे हैं और कितना लॉजिकल कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि डाउट को लास्ट तक होल्ड करके रख रहे हैं, बस मतलब 5 मिनट होल्ड करके रख रहे हैं। डोंट यू थिंक दैट्स फाइन? Yes. Yes sir. यस सर। सर एक डाउट है। हाँ बच्ची बोल। सर हमने यूनियन के लिए x बिलोंग्स टू लाइक हमने लिखा था कि x बिलोंग्स टू 4,7 और फिर यूनियन फिर डायरेक्ट 9,12। इसमें 2 बार x बिलोंग्स टू लिखना जरूरी है क्योंकि यूनियन का मतलब प्लस है, तो प्लस लिखना पड़ता है। इंटरसेक्शन में दोनों ब्रैकेट क्लब हो जाते हैं। देख अब दोनों एग्जांपल बताता हूँ, देखो दोनों साथ में, देख इधर। एवरीवन कॉपी टिल हियर? Yes sir. चलो जब मैं पूछूंगा तभी आंसर चिल्लाओगे। 0 to 4 यूनियन x बिलोंग्स टू 2 to 6। और दूसरा क्वेश्चन x बिलोंग्स टू 0 to 4 यूनियन x बिलोंग्स टू 2 to 6। तीसरा क्वेश्चन x बिलोंग्स टू 0 to 4 इंटरसेक्शन x बिलोंग्स टू 7 to 10। चौथा क्वेश्चन x बिलोंग्स टू 0 to 4 यूनियन x बिलोंग्स टू 7 to 10। इसके बाद तो कोई डाउट ही नहीं बचेगा। चारों का आंसर सोच लो जल्दी से, सोच लो, लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हारी इच्छा है तो लिख देना बाद में। सिंपल कीवर्ड याद करो। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन या एंड। यूनियन का मतलब और एडिशन और एडिटिव। बस चलो चलाना चालू करें? यस सर। इतना पूछो उतना ही। फर्स्ट का आंसर लाउड वॉइस में चिल्ला दो। x belongs to open bracket 2,4 close bracket 2 और 4 पे दोनों पे ओपन। एग्री? यस सर। Yes sir. फर्स्ट में डाउट?
परफेक्ट। सेकंड अभी नहीं, जब मैं बोलूंगा तब चिल्लाना। सोच लो, यूनियन है, यूनियन मतलब एडिटिव, बट 2 बार नहीं लिखते हैं। अगर एक ब्रैकेट आ रहा है तो एक बार ही लिखेंगे फाइनल आंसर में। यूनियन एडिटिव, x 0 से 4 भी हो सकता है या फिर 2 से 6 भी हो सकता है। तो बताओ x फाइनली क्या हो सकता है? रेडी ना? यस सर। हाँ, बिल्कुल गलत नहीं चाहिए है ना, मेक मी प्राउड। चलो बोलो आंसर। X X belongs to open bracket 0,6 कॉलर खड़े कर दिए मेरे यार, मजे ही आ गया। x belongs to 0 to 6, come on everyone convince and say yes. Yes, sir. x 0 से 4 भी चलेगा और 2 से 6 भी चलेगा, तो फाइनली कॉमन सेंस x कहां से कहां तक चलेगा? 0 से 6 तक चलेगा। किसी को डाउट सेकंड में? नो सर। देख रहे हो, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, बट आंसर कितना डिफरेंट आया? सिर्फ इंटरसेक्शन यूनियन। Yes. यस सर। तीसरा और चौथा भी सेम है, दिख रहा है ना आपको? यस सर। हाँ चलो तीसरे का सोच लो, तीसरे का सोच लो, सोच लो। बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। सॉरी, सोच लो। कॉमन, इंटरसेक्शन, चलो चिल्लाओ। X belongs belongs to to open bracket, 7, comma 4. 4 Sir, it's a null set. Set. पर कुछ कॉमन ही नहीं है। बिल्कुल करेक्ट, तो सही लिखा है ना मैंने? यस सर। Yes, sir. तो फिर कुछ बच्चे नालायक क्यों बोल रहे थे 4 7 का बड़ा? अब वो बच्चे भी कन्विंस हो गए कि नल सेट इज द आंसर। क्या समझाना है? सर आपने कौन सा सिंबल लिखा है? ये 5 सिंबल इज यूज्ड। तो बच्ची 10th क्लास में ना यार ऐसे क्या करती है? नल सेट को ऐसे लिखते हैं, कोई भी नंबर नहीं है नल सेट। नल मतलब कुछ भी नहीं है, तो इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर बच्ची? ओके सर। क्या सबको थर्ड पार्ट क्लियर है? Yes. नल सेट मतलब नो सॉल्यूशन, कैन आई से ना? Yes, sir. सर। चलो चौथा सोच लो, सोच लो, जब मैं बोलूं तब आंसर चिल्लाना। सोच लो। x 0 से 4 होगा या फिर 7 से 10 होगा? कम ऑन, ये भी कर लो तो कॉलर खड़े हो जाएंगे मेरे यार। x, बस ये बता रहा हूँ, x 5 नहीं हो सकता, 4.9 नहीं हो सकता। करेक्ट और नॉट? yes, 0 to 4, 7 to 10. लाउड वॉइस चिल्लाओ आंसर। अब x belongs to X belongs to 0 to 4, 7 to 10. Union 7, 7 to 10. 7 to 10 सर। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। समझ में आ गया नालायक हो? Yes, Yes, sir. 0 to 4 यूनियन, बस ऐसे ही लिखेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यूनियन 0 to 4, यूनियन 7 to 10। क्या एवरीवन है विद मी? एवरीवन हैप्पी? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। किसी की लाइफ में दुख दर्द? No, sir. सर एक डाउट था। हाँ तो बता, कौन सा दुख दर्द है? सर हम लोग वो फोर्थ वाले इसमें x बिलोंग्स टू 0 to 10 माइनस 4 to 7 लिख सकते हैं? बता, यही बोल रहा है? नहीं सर, वो ओपन ब्रैकेट। नहीं, ओपन नहीं, क्योंकि 4 फाइनल आंसर में नहीं आना चाहिए, इसलिए हटाना पड़ेगा पहली बात तो इसलिए 4 क्लोज ही करेंगे और 7 पे भी क्लोज करेंगे, क्योंकि 7 फाइनल आंसर में नहीं आना चाहिए। यहाँ तक मेरे साथ है बच्चे? यस सर, थैंक यू सर। बट हाँ, ये ओके है, बट ये प्रेफर्ड नहीं है, ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ। समझ गया? यस सर। हाँ बच्चों, ये कॉपी करना है क्या? कर लेना बाद में, कर लेना बाद में, अगर जरूरत लग रही है तो 2 लाइन छोड़ दो। ठीक है? इफ यू फील द नीड, कॉपी इट लेटर। आई एम मूविंग ऑन। एवरीवन ओके? Yes. Okay, sir. Hello, You can sir. just leave 2 or 3 lines. You can copy it later. Any doubt before I move on to next page? Hello, sir. Hello, miss. Sir, instead of null set, can we write empty set? लिख सकती है, बट ऑप्शन में ये दिखेगा तुमको। ठीक है? ठीक है बच्ची? Yes, sir. अच्छा, वो नालायक विनायक को लिख देना चैट पे कि नेम चेंज करके एंटर हो जा। कोई लिख देना। कैन एनीवन राइट डाउन?
हाँ भाई लिख दिया, चलो इसको लिखो x ग्रेटर देन 3 एंड x लेस देन 10, लिखो जल्दी से। एंड आई होप ध्यान दे रहे हो, फर्स्ट और सेकंड दोनों करो जल्दी से। एंड का मतलब क्या होता है, यूनियन या इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। एंड का मतलब इंटरसेक्शन, और का मतलब यूनियन। फर्स्ट सबने लिखा है एवरीवन? यस सर। ये बोल रहा है कि x 3 से इन्फिनिटी होगा, ये बोल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 10 होगा, करेक्ट? यही बोल रहा है ना, और दोनों का इंटरसेक्शन लिखा है। यस सर। फिर बुलंद आवाज में बोल दो, क्या है फाइनल आंसर? x belongs to square brackets 3, 10. किसी को भी फर्स्ट में डाउट है? नहीं सर। चलो गुड, सेकंड का भी बोल दो चिल्ला के, कम ऑन। 2 to 6 and 8 to infinity. 2, 6 union round bracket square bracket 8 to infinity. 8 to infinity. बिल्कुल करेक्ट, वेरी गुड, कोई डाउट? No sir. No, sir. लास्ट टाइम कोई डाउट? चलो गुड, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं, मेन टॉपिक पे आ रहा है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी यूजिंग वेवी कर्व मेथड। बच्चों थोड़ा सा आज चालू करते हैं, दिस टॉपिक विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, क्योंकि बड़ा टॉपिक एकदम से तो फिनिश होगा नहीं। बट लेट मी टेल यू कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस है। देखो सर, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेकंड राइट साइड में, और लेफ्ट पार्ट में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है, करेक्ट नॉट बच्चों? यस सर। Yes sir. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तुम फर्स्ट स्टेप में क्या करते हो, फैक्टराइज करते हो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। यस सर। Yes, sir. यस सर। तो वो यहाँ पे भी वही करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। तो यहाँ तक इनइक्वालिटी में भी कोई गलती नहीं है। अब इक्वालिटी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें क्या करते हो बताओ? आइदर x माइनस 1 इज 0 और x माइनस 2 इक्वल टू 0, यही करते हो ना? यस सर। Yes, sir. और फिर बोल देते हो आइदर x इज 1 और x इज 2, देयरफॉर सेट नोटेशन में ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 कर्ली ब्रैकेट 2। कम ऑन, एग्री करो? Yes sir. यस Yes, सर। sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमेशा बचपन से करते आ रहे हैं। बट यही चीज तुमने यहाँ पे कर दी तो गलत आंसर आएगा। देखो क्या करोगे, अगर तुमने इसके बाद ऐसा कर दिया कि आइदर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0 और x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0, बिल्कुल गलत है ये। बहुत सारे बच्चों को तो फील आ गई होगी गलत। कम ऑन। यस सर। Yes, sir. Yes sir.
यस मैं सर। शॉर्ट में समझाता हूँ गलत क्यों है, फिर तो मैं इसको सॉल्व करके तुम्हें फाइनल आंसर भी दिखाता हूँ कि गलत है। बट तुम खुद बताओ, अगर मैं इस नंबर को ए बोलूँ, इस नंबर को बी बोलूँ, तो कहना ही सही है a इंटू बी को पॉजिटिव बनाना वाला क्वेश्चन था। कम ऑन एग्री करो, पॉजिटिव या जीरो। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब कहना ही से प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स को पॉजिटिव बनाना था। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. दो नंबर्स पॉजिटिव कब होते हैं? या तो दोनों पॉजिटिव होने चाहिए या दोनों नेगेटिव होने चाहिए। कम ऑन एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. और दोनों पॉजिटिव को लिखते कैसे हैं? दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। दोनों मतलब ए भी पॉजिटिव होना चाहिए एंड बी भी पॉजिटिव होना चाहिए। एग्री करो। Yes, Yes, sir. sir. ग्रेटर देन जीरो एंड बी ग्रेटर देन जीरो, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. और दूसरे केस की तो अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, दूसरा केस भी लेना है। अब कम ऑन, ए कौन है? मैंने ए किसको लेबल किया था बच्चों? X minus X 1. minus 1. x minus 1 किसको लेबल किया था? X minus 2. मतलब कहना इससे करेक्ट मेथड के हिसाब से ऐसा करना चाहिए ना? हाँ sir. Yes, sir. Yes, और sir. तुमने क्या कर दिया देखो? Yes, sir. इज देयर अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ देम और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो क्या सबको समझ में आया कि और लिख के ऐसा कर दिया जो इक्वलिटी में करते हो तो बिल्कुल गलत है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. अब उसका चलो उससे एक बार आंसर भी निकालते हैं, तुम्हें जस्टिफाई करके दिखाता हूँ कितना गलत आंसर आ रहा है। और क्या करेक्ट मेथड होगा वो बाद में बात करेंगे। अभी किसकी बात कर रहे हैं हम? Wrong. गलत में रॉन्ग। गलत method. क्या नहीं करना है, क्या मिस्टेक हो सकती है। सो चलो, अगर तुमने ये गलत आंसर कर दिया तो इससे आंसर तो निकाला एक बार। ये बोल रहा है x ग्रेटर देन 1 और x ग्रेटर देन 2। ये बोल रहा है x बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी, और का मतलब यूनियन होता है x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी। मेरे सारे बच्चे यूनियन का आंसर बोल सकते हैं फाइनल आंसर। कम ऑन, यूनियन एडिटिव दोनों में। वन एक टू बोल रहा है 1 इंफिनिटी। 1 to infinity. बिलोंग्स टू 1 से इंफिनिटी हो जाएगा। कम ऑन, सेफ साइड। एक बोल रहा है 1 से, एक बोल रहा है 2 से, तो x क्या 1 से इंफिनिटी में कोई भी होगा, चलेगा ना? कम ऑन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कहना इसे गलत मेथड के हिसाब से इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर ये आया। Yes. Yes, Yes, sir. sir. That means if I take x as 1.1, x minus 1 into x minus 2 greater than equal to 0 होना चाहिए। कम ऑन, Yes. 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 यही तो मतलब है आंसर का। कम ऑन, एग्री करो। हाँ Yes, sir. yes sir चेक करते हैं। x को 1.1 रखो, मुझे वैल्यू से मतलब नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बोलो मुझे। 1.1 minus 1 पॉजिटिव नेगेटिव। Positive. Positive. 1.2 minus 2 नेगेटिव। Negative. पॉजिटिव इंटू नेगेटिव। Negative. नेगेटिव ग्रेटर देन 0 होता है क्या? No, sir. Sir. 1 सही आंसर है, गलत आंसर है? Gलत One, answer. sir. Correct answer. क्या सब कन्विंस हैं कि ऐसा नहीं करना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब से मैं इसका नाम, क्योंकि क्या होता है बच्चों, मैं बता देता हूँ ये, बट तो भी लोग कुछ नालायक बच्चे 4 महीने तक ये मिस्टेक करते हैं, भूल जाते हैं वेवी कर्व मेथड से करना है, और ये नालायकपंती मिस्टेक करते हैं। इसलिए अब से इस मिस्टेक को नमूना मिस्टेक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नमूना Mistake. तो अब कभी मैं 1 महीने बाद भी बोलूँ कि नमूना मिस्टेक कर दिए, याद आ जाएगा ना तुम्हें? Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो रिमाइंड मी अगेन, मैंने अभी तक करेक्ट मेथड बताया या नहीं बताया? नहीं बताया। नहीं बताया। यहाँ तक कॉपी तो करो, फिर बताता हूँ। तो रॉन्ग मेथड भी कॉपी करना है। यस, बिल्कुल कॉपी कर, रॉन्ग मेथड भी कॉपी कर। अब इक्वेशन के बारे में लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों, नो नीड है ना। वो तो तुम्हें समझाने के लिए राइट साइड वाला पार्ट लिखा, तुम तो सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट और मिस्टेक कॉपी करो। बट अच्छी तरह मिस्टेक को क्रॉस कर देना, समझ गए?
यस, सबने कर लिया यहाँ तक? यस सर। करेक्ट मेथड अभी बताऊंगा, बट यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। चलो बताओ, तुम्हें स्टोरी सुनाने की इच्छा हो रही है या फिर आगे पढ़ ले? क्या अच्छा है तुम्हारी? बोलो। स्टोरी। क्योंकि अब मैं सोच रहा हूँ कि करेक्ट मेथड नेक्स्ट क्लास में बताऊं तो बेटर रहेगा, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी उस समय। सो स्टोरी कौन सी सुनोगे? इंस्पिरेशनल स्टोरी एक बच्चे की जिसने जेई में बहुत अच्छा किया, पहले डफर था, या फिर कोई फन लविंग मेरी आईआईटी की स्टोरी? क्या आपकी आईआईटी की इंस्पिरेशनल। सर दोनों। चलो वो सुन लो। अच्छा, रैगिंग की स्टोरी या फिर एक गाली की स्टोरी? रैगिंग। अब यार सबने अपने कॉलेज जमाने में थोड़े किए, तुम्हारे साथ शेयर करूंगा तभी तो तुम मेरे क्लोजर फील करोगे। करेक्ट और नॉट? यस सर। यस सर। यस सर। तो नमन, तेरे बैच में सुनाई थी मैंने कभी? नहीं सर, आपने नहीं सुनाई थी। अच्छा, चलो आज के लिए पहले ये तो बता देता हूँ, जिसको जाना है वो जा सकता है। होमवर्क क्या है पहले लिख लो, नोट्स रिवाइज करना है अच्छी तरह। थिंक कि करेक्ट मेथड क्या होगा, समझ गया ना करेक्ट मेथड किसकी बात कर रहा हूँ मैं? हाँ सर। यस सर। जो अभी जस्ट पढ़ाया। फिर MPS 1 के वो क्वेश्चन 1 से 10 वापस करोगे, ठीक है? जिसने नहीं किए वो करेंगे। 4th MPS 5 करोगे जो मैं भेजूंगा बाद में। 5th अर्लियर MPS के डाउट्स को देख के फिनिश करना, MPS 2, 3, 4। सबको क्लियर है? यस सर। यस सर। तो ज्यादा होमवर्क नहीं है, बट ठीक है इतना ही करो। सी द डाउट्स फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड व्हाटएवर डाउट रिमेन्स नेक्स्ट क्लास देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे। तो जिसको अब जाना है जा सकता है, क्लास इज ओवर। मैं बस स्टोरी सुना रहा हूँ बस।